Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology, the subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE and having a subject code is 3150610. In this session, we will discuss about methods of concrete mix design. Some of the commonly used mix design methods are IS method, ACI method means American Concrete Institute method, Road Note 4 method means UK method, IRC 44 method, arbitrary method, maximum density method, fineness modulus method, surface area method, mix design for high strength concrete, mix design for pumpable concrete, and DOE British mix design method. So in this lecture we will discuss about IS method for mix design as per IS 10262/2009, and then after we will see one example related to IS method. So let us start with the step-by-step procedure of IS method for mix design of concrete. So step 1, target mean strength. In order that not more than 5% of test results are likely to fall below the characteristic strength, the concrete mix has to be proportion for higher target mean compressive strength capital FCK given by the following relation. So target mean स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली एक टारगेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि कैपिटल FCK का एक रिलेशन दिया गया है यहाँ पे. कैपिटल FCK इज इक्वल्स टू स्मॉल FCK प्लस 1.65 इंटू S. So where capital FCK is equals to target mean compressive strength at 28 days in Newton per mm square. Small FCK is equals to characteristic compressive strength at 28 days in Newton per mm square. And S means standard deviation. So S को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है. सो द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन S मे बी टेकन फ्रॉम टेबल. सो यहाँ पे डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट दिए गए हैं और उसके मुताबिक ये एज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन इन न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया गया है. लाइक M10 और M15 ग्रेड का कंक्रीट है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 3.5. M20 और M25 में आएगा 4. M30 से M55 तक आएगा 5. So step 2, selection of water cement ratio. Since different cements and aggregates of different maximum size, grading, surface texture, shape and other characteristics may produce concrete of different compressive strength for the same free water cement ratio. So the relationship between strength and free water cement ratio should preferably be established for the material actually to be used. So generally क्या होता है कि सीमेंट एंड एग्रीगेट है उसमें डिफरेंट मैक्सिमम साइज, ग्रेडिंग, सरफेस टेक्सचर, शेप और अदर कैरेक्टरिस्टिक है वो जब आप सेम डिफरेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कंक्रीट बनाते हो जब आप तब वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक सबकी डिफरेंट प्रोड्यूस होती है. सो सेम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो के लिए यहाँ पे रिलेशन है स्ट्रेंथ और फ्री वाटर सीमेंट रेशियो जो एक्चुअली मटेरियल आप यूज़ करते हो उसके हिसाब से आपको लेना रहता है.
In the absence of such data, the preliminary free water cement ratio by mass corresponding to target strength at 28 days may be selected from the relationship shown in figure 6.1. So आपको यहाँ पे 28 डेज की ये टेबल में स्ट्रेंथ दी गई है और उसके हिसाब से फ्री वाटर सीमेंट रेशियो दिया गया है। लाइक आपका कंप्रेसिव 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लाइक 48 है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ये जो है वो टच होता है, तो आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 35 और 40 के बीच में आएगा, 35 और 40 के बीच में। और आपका 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 है, तो वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे। सो आपका वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.55 और 0.60 के बीच में आएगा। Otherwise, the water cement ratio given in table 6.5 of IS 456-2000 for respective environment exposure condition may be used as a starting point as given below। कई बार क्या होता है कि आपको प्रॉपरली एनवायरनमेंट एक्सपोजर कंडीशन दिया गया है, तो उसके हिसाब से भी आप वाटर सीमेंट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे दिया गया है एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड हो तो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो रहता है 0.55, मॉडरेट पे 0.50, सीवर पे 0.45, वेरी सीवर पे 0.45 और एक्सट्रीम में 0.40। स्टेप 3 दिया गया है सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। सो द वाटर कंटेंट ऑफ कॉन्क्रीट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज एग्रीगेट साइज, एग्रीगेट शेप, aggregate texture, workability, water cement ratio, cement and other supplementary cementitious materials, types and contents, then chemical admixtures and environmental condition। So वाटर कंटेंट है जो कंक्रीट का, उसको नंबर ऑफ फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्रीगेट साइज, शेप, टेक्सचर, वर्केबिलिटी, वाटर सीमेंट रेशियो, सीमेंट और उसके अलावा आप कोई भी पोजोलॉनिक मटेरियल एज ए सीमेंटेनियस मटेरियल वहाँ पे आप ऐड कर रहे हो, कोई केमिकल एडमिक्सचर हो, कोई एनवायरमेंटल कंडीशन, ये सभी फैक्टर्स है वो वाटर कंटेंट जो कंक्रीट में रहता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो एन इंक्रीज इन एग्रीगेट साइज, ए रिडक्शन इन वाटर सीमेंट रेशियो एंड स्लम्प, एंड यूज ऑफ राउंडेड एग्रीगेट एंड वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर विल रिड्यूस द वाटर डिमांड। सो जैसे ही एग्रीगेट की साइज बढ़ती है तो वहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो और स्लम्प है उसमें रिडक्शन होता है। तो कई बार आप राउंडेड एग्रीगेट यूज़ करते हो और कोई वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर यूज़ करते हो तो वहाँ पे वाटर डिमांड है वो कंक्रीट में रिड्यूस होती है। ऑन द अदर हैंड, इंक्रीज टेम्परेचर, सीमेंट कंटेंट, स्लम्प, वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट एंगुलरिटी एंड डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट टू फाइन एग्रीगेट विल इंक्रीज इन वाटर डिमांड। सो कई बार टेम्परेचर बढ़ता है, सीमेंट कंटेंट बढ़ता है, स्लम्प बढ़ता है, वाटर सीमेंट रेशियो को आप बढ़ाते हो, कई बार एंगुलरिटी है एग्रीगेट में, कई बार आप कोर्स एग्रीगेट का और फाइन एग्रीगेट का प्रोपोर्शन है वो डिक्रीज करते हो, तो वहाँ पे वाटर डिमांड है वो बढ़ जाती है। सो द क्वांटिटी ऑफ मैक्सिमम मिक्सिंग वाटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में बी डिटरमाइन फ्रॉम टेबल 6.6 गिवन बिलो। यहाँ पे नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट दिए गए हैं और स्लम्प दिया गया है 25 to 50, उसके बीच में भी उसके बीच में स्लम्प हो और नॉमिनल मैक्सिमम साइज लाइक 10 हो, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो लेना रहता है 208 किलोग्राम। 20 हो मैक्सिमम नॉमिनल साइज तो वहाँ पे 186 किलोग्राम वाटर लेना रहता है, और 40 हो तो 165। The water content given in table 6.6 is for angular coarse aggregate and for 25 to 50 mm slump range. The water estimate in table 6.6 can be increased by approximately 10 kg for subangular aggregate, 20 kg for gravel with some crushed particle and 25 kg for rounded gravel to produce same workability। जो आगे हमने टेबल देखा वो एंगुलर कोर्स एग्रीगेट के लिए है और स्लम्प है 25 to 50, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जो आप एग्रीगेट यूज़ करते हो वो एंगुलर एग्रीगेट है, तो सब एंगुलर एग्रीगेट है, तो वहाँ पे आपको 10 किलोग्राम वाटर कंटेंट है वो बढ़ जाता है।
और कई बार ग्रेवल है उसके साथ कोई सम क्रस्ट पार्टिकल्स है तो वहाँ पे आपको 20 किलोग्राम वाटर है वो इंक्रीज करना रहता है। कई बार राउंडेड एग्रीगेट यूज़ करते हो और सेम वर्केबिलिटी, आप ये तीनों में सेम वर्केबिलिटी प्रोड्यूस करनी है, राउंडेड एग्रीगेट यूज़ करते हो तो वहाँ पे 25 किलोग्राम तक आपको वाटर कंटेंट है वो इंक्रीज करना रहता है अप्रोक्सीमेटली। फॉर द डिजायर वर्केबिलिटी अदर देन 25 to 50 mm slump, the required water content may be established by trial or an increase by about 3% for every additional of 25 mm slump or alternatively by use of chemical admixture। तो आपकी कोई डिज़ायर वर्केबिलिटी है लाइक 25 to 50 mm स्लम है, उससे ज़्यादा स्लम है लाइक 100 स्लम वहाँ पे आपको दिया गया है, तो क्या करना रहता है, एवरी 25 mm स्लम्प आपको 3% है वाटर है वो इंक्रीज करना रहता है। सपोज़ के आपका वाटर कंटेंट है 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम आपका वाटर कंटेंट आप ले रहे हो और वहाँ पे स्लम्प है 100 mm, तो एवरी 25 3%, तो क्या हुआ कि वहाँ पे 50 mm है स्लम ज़्यादा हुआ तो 6% आपको वाटर ज़्यादा वहाँ पे ऐड करना रहता है। तो 100 किलोग्राम आप वाटर जब ले रहे हो तो वहाँ पे 6% यानी कि 6 किलोग्राम ज़्यादा यानी कि 106 किलोग्राम वाटर है वो आपको ऐड करना रहता है। और उसके अलावा आप वाटर ऐड नहीं करना चाहते हो तो वहाँ पे आप कोई केमिकल एडमिक्सर यूज़ करते हो जो वाटर रिटार्डिंग है। So water reducing admixture or some plasticizer usually decrease water content by 5 to 10% and 20% and above respectively at appropriate dosage। जैसे आप डोसेज बढ़ाते हो तो वहाँ पे आप 5, 10, 20 और उससे भी ज़्यादा आप वाटर कंटेंट है वो कम कर सकते हो। स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंटेनियस मटेरियल कंटेंट। The cement and supplementary cementeous material content per unit volume of concrete may be calculated from the free water cement ratio and the quantity of water per unit volume of concrete। जो सीमेंट कंटेंट है वो जनरली आप वाटर सीमेंट रेशियो से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो और कितनी क्वांटिटी आप वाटर यूज़ करते हो उसके हिसाब से भी आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। The cementeous material content so calculated shall be checked against the minimum content for the requirement of durability and greater of the two values adopted। So cementeous material आप जब adopt करते हो तो वहाँ पे आपको क्रॉस चेक भी करना रहता है, मिनिमम कंटेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आपका कंटेंट है तो वो आपको लेना है और दो में से जो ज़्यादा है वो आपको अडोप्ट करना रहता है। The minimum cement content shall be accordance with IS 456-2000 table 5.5। So this is the minimum cement content। So यहाँ पे एक्सपोजर दिया गया है और प्लेन कंक्रीट में आपको मिनिमम सीमेंट कितना लेना है और उसके सामने मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेना है और वहाँ पे सामने ग्रेड दिया गया है। और उसके बाद आगे है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, उस पर मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो और उसके सामने ग्रेड दिया गया है। लाइक आपका एक्सपोजर माइल्ड है और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है तो वहाँ पे मिनिमम सीमेंट कंटेंट आएगा 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो वहाँ पे आएगा 0.55 और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहेगा वहाँ पे M20। सो लाइकवाइज मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर और एक्सट्रीम में ये सभी दिया गया है। The minimum cement content and maximum water cement ratio apply to 20 mm nominal maximum size of aggregate. For the other size of aggregate, they should be changed as given in table 6 for IS 456-2000 reproduce as below। लाइक 10 mm एग्रीगेट नॉमिनल साइज है तो वहाँ पे एडजस्टमेंट टू मिनिमम सीमेंट कंटेंट टेबल नंबर 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो रहा था +40। 20 mm है तो वहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना रहता है। 40 mm साइज़ का एग्रीगेट है वहाँ पे -30 है वो सीमेंट कंटेंट को कम करना है। देन स्टेप 5, estimation of coarse aggregate proportion। Aggregate of
Essentially, the same nominal maximum size, type and grading will produce concrete of satisfactory workability when a given volume of coarse aggregate per unit volume of total aggregate is used. So the appropriate values of this aggregate volume are given in table 6.8 for water cement ratio of 0.5. This aggregate volume may be adjusted for other water cement ratio as below. For every decrease of water cement ratio by 0.05, जब वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.05 जितना डिक्रीज होता है तो कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम में भी इंक्रीज बाय 1% टू रिड्यूस द सैंड कंटेंट. सैंड कंटेंट्स को रिड्यूस करने के लिए कोर्स एग्रीगेट का 1% है वो आपको इंक्रीज करना रहता है. फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.05, कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम में भी डिक्रीज बाय 1% टू इंक्रीज द सैंड कंटेंट. So this is what the for more workable concrete mixes which is sometimes required when placement is by pump or when the concrete is required to be work around congested reinforcement. It may be desirable to reduce the estimate coarse aggregate content determining using 6.8 up to 10%. So जहाँ पे पंपेबल कंक्रीट जब आप पंपेबल मेथड यूज़ करते हो कंक्रीट को प्लेस करने के लिए, सो और कई कंजेस्टेड एनफोर्समेंट में आप कंक्रीट डाल रहे हो तो वहाँ पे कोर्स एग्रीगेट है वो जनरली क्या होता है उसका कंटेंट 10% तक है वो कम रिड्यूस होता है. सो यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है कोर्स एग्रीगेट का पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन फाइन एग्रीगेट फॉर वाटर सीमेंट रेशियो 50 के लिए यहाँ पे दिया गया है 0.50 के लिए. सो 10 mm नॉमिनल साइज एग्रीगेट हो तो जोन 4 में 0.50, जोन 3 में 0.48, जोन 2 में 0.46 और जोन 1 में 0.44. लाइकवाइज 20 और 40 नॉमिनल साइज एग्रीगेट का दिया गया है. देन स्टेप नंबर 6, एस्टिमेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट प्रपोर्शन. अब फाइन एग्रीगेट का प्रपोर्शन कैसे फाइंड आउट करना है. अप टू स्टेप 5 ऑल द इंग्रेडिएंट्स हैव बीन एस्टिमेटेड एक्सेप्ट द कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट. स्टेप 5 तक हमने सभी इंग्रेडिएंट्स का जो प्रपोर्शन है वो हमने फाइंड कर लिया. अब फाइन और कोर्स एग्रीगेट का कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं. The quantities are determined by finding out the absolute volume of cementeous material, water and the chemical admixture by dividing their mass by their respective specific gravity multiplying by 1/1000 because of 1 मीटर क्यूब. जब आप डिज़ाइन करते हो तो 1 मीटर क्यूब की डिज़ाइन करनी रहती है. and subtracting the results of their summation from the unit volume 1 मीटर क्यूब. अब क्या करना है आपको प्रॉपर सीमेंटेनियस मटेरियल और वाटर और केमिकल एडमिक्सचर्स की जो उसका मास है उसको उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ डिवाइड करना है और मल्टीप्लाइंग करना है 1/1000 से और जो रिजल्ट आए उसको 1 मीटर क्यूब में से सब्सट्रैक्ट करना है तो आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर दैट मटेरियल्स का मास. The result will be the absolute volume of coarse and fine aggregate put together. ऐसे ही आपको कोर्स और फाइन एग्रीगेट का एब्सोल्यूट वॉल्यूम फाइंड करना है. वी नो द वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड हेंस द वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कैन बी कैलकुलेटेड. जैसे आप कोर्स एग्रीगेट का स्टेप नंबर 5 में आपको वॉल्यूम पता है तो आप फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम भी उसमें से फाइंड कर सकते हो. इन द वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट आर इन सैचुरेटेड एंड सरफेस ड्राई कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन द एब्सॉर्प्शन और प्रेजेंस ऑफ सरफेस मॉइस्चर फील्ड करेक्शन आर मेड. सो कोर्स एग्रीगेट को और फाइन एग्रीगेट का वेट फाइंड आउट करने के लिए जनरली कई बार एब्सॉर्प्शन वहाँ पे दिया गया रहता है और मॉइस्चर भी प्रेजेंट रहता है तो उसका फील्ड करेक्शन करके आपको उसका वेट फाइंड करना रहता है. सो दिस इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ concrete mix design. So now we will see one example related to concrete mix design. So यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है. डिज़ाइन ए concrete mix for M40 grade of concrete with the following data. So
M40 ग्रेड का कंक्रीट की डिज़ाइन करनी है और वेरियस डेटा यहाँ पे दिया गया है, उसका यूज़ करके हमको M40 ग्रेड कंक्रीट की डिज़ाइन करनी है। सो टाइप्स ऑफ सीमेंट दिया गया है, OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 43 ग्रेड, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm आपको वहाँ पे यूज़ करना है, एक्सपोजर कंडीशन सीवर है, वर्केबिलिटी 100 mm दी गई है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट 320 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया गया है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 दिया गया है, मेथड ऑफ कॉन्क्रीट प्लेसिंग है पंपिंग से करना है, डिग्री ऑफ सुपरविजन है गुड, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट है क्रस्ट एंगुलर एग्रीगेट, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट 450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया गया है, केमिकल एडमिक्सचर टाइप है सुपर प्लास्टिसाइजर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट है 3.15, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट है 2.74, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन एग्रीगेट की 2.74, वाटर एब्सॉर्प्शन दिया गया है कि कोर्स एग्रीगेट है वो 0.5% वाटर एब्सॉर्ब करता है, फाइन एग्रीगेट है वो 1.5% वाटर एब्सॉर्ब करता है, और फ्री सरफेस मॉइस्चर कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट में नील है। ग्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट कन्फॉर्मिंग टू टेबल 2 ऑफ IS 383 एंड ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट कन्फॉर्मिंग टू जोन 1 ऑफ टेबल 4 IS 383। सब अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे उसका सोल्यूशन करना है। सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पे दी गई थी 40 न्यूटन पर mm²। तो अब हम FCK डैश फाइंड करेंगे, FCK प्लस 1.65 इंटू S। सो FCK 40 दिया गया है प्लस 1.65 इंटू S यहाँ पे 5 हमने लिया है, क्यों? क्योंकि फ्रॉम टेबल 6.4 फॉर M40 कंक्रीट द स्टैंडर्ड डेविएशन S इज 5 न्यूटन पर mm²। देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है M40 का कंक्रीट है, उसके सामने स्टैंडर्ड डेविएशन है 5। देन सेकंड वन इज सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो फ्रॉम टेबल 5 ऑफ IS 4562,000। टेबल 6.5 यहाँ पे दिया गया है। फॉर सीवर एक्सपोजर कंडीशन मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.45। Based on experience of mixed designer, water cement ratio is taken as 0.40. So adopted smaller of two values. उसमें ये दो में से स्मॉलर है 0.40, तो हमारा यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो आएगा 0.40। देन स्टेप नंबर 3 इज दैट सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। सो मैक्सिमम वाटर कंटेंट फ्रॉम टेबल 6.6 फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm इज 186 लीटर। देखते हैं। सो यहाँ पे दिया गया है टेबल नंबर 6.6 में 20 mm साइज एग्रीगेट, देन मैक्सिमम वाटर कंटेंट इज 186 किलोग्राम। सो दिस इज फॉर 50 mm स्लम। जो हमने वाटर सीमेंट रेशियो हमने जब टेबल 6.6 में हमने देखा था तो वहाँ पे 25 से 50 mm स्लम का वो वाटर कंटेंट था। तो हमने वहाँ पे थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की कि जैसे ही 25 mm जितना स्लम बढ़ता है तो वहाँ पे 3% है वाटर इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज 3% वाटर फॉर एवरी 25 mm स्लम्प ओवर एंड अबव 50 mm स्लम्प। सो वी हैव स्लम्प वैल्यू ऑफ 100 mm। सो हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे स्लम्प वैल्यू हमको 100 mm दी गई है। सो हेंस इंक्रीज वाटर बाई 6%। तो हमारा यहाँ पे वाटर है वो 6% बढ़ेगा। So estimated water content for 100 mm slump is equals to 186 plus 6% of 186, यानी कि अब हमारा वाटर कंटेंट आएगा 197 लीटर। Then as super plasticizer is used, the water content can be reduced up to 20% and above
एज्यूम 25% रिडक्शन इन वाटर कंटेंट ड्यू टू सुपर प्लास्टिसाइजर। सुपर प्लास्टिसाइजर हमको एडमिक्सर है यूज़ करने को एग्जाम्पल में बोला है, तो सुपर प्लास्टिसाइजर नियर अबाउट 25% वाटर है वो रिड्यूस करता है। तो अब एक्चुअल 197 लीटर जो हमारा पहले आया था उसका अब लेना रहेगा 0.75, 25% तक उसमें वाटर है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो वो आएगा 148 लीटर, 148 लीटर। देन स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। सो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो था यहाँ पे 0.40, वाटर यूज्ड 148 लीटर। सो सीमेंट कंटेंट इज W/C इज इक्वल्स टू 0.40, तो हमारा सीमेंट कंटेंट आएगा 370 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो एज पर IS 456/2000 टेबल 5, मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर सीवर एक्सपोजर कंडीशन इज 320 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मिनिमम सीमेंट कंटेंट 320 लेना है, लेकिन हमारा यहाँ पे कितना आया है 370, तो ओके है, तो हमारा सीमेंट कंटेंट आएगा 370। देन स्टेप नंबर 5, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट। फ्रॉम टेबल 6.8, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट करस्पॉन्डिंग टू 20 mm मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट जोन 1 फॉर वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 है, तो वहाँ पे हमारा जो कोर्स एग्रीगेट कंटेंट है, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट कंटेंट आएगा वो 0.60 आएगा। सो इन दिस केस वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे 0.40 दिया गया है, तो मीन्स क्या हुआ 0.10 लेस हुआ। सो एज द वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस इट इज़ डिजायरेबल टू इंक्रीज इन कोर्स एग्रीगेट कंटेंट टू डिक्रीज फाइन एग्रीगेट कंटेंट। तो कोर्स एग्रीगेट कंटेंट है वो हमको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, और क्योंकि फाइन एग्रीगेट कंटेंट है उसको हमको यहाँ पे डिक्रीज करना है। सो एवरी डिक्रीज ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो बाय 0.05 the coarse aggregate volume may be increased by 1%, like 0.01. So as the water cement ratio is less by 0.10, यहाँ पे हमारा water cement ratio है वो 0.10 लेस है, so coarse aggregate volume increase by 0.02 यानी कि 2%. So corrected proportion of वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम 60 दिया 0.60 हमको टेबल में से मिला, और 0.02 है उसका इंक्रीज़ हुआ यानी कि 2% इंक्रीज़ हुआ, तो कोर्स एग्रीगेट का करेक्ट प्रोपोर्शन आएगा 0.62। अब और भी पंपेबल कंक्रीट दिया गया है। सो कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम कैन बी रिड्यूस बाय 10%, वो हमने आगे थियरी में देखा। सो फाइनल वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज़ 0.62 इंटू 90%, 10% कम हुआ इसलिए अब कितना रहेगा 90%, तो वो आएगा 0.56। सो वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट 1 में से हम 0.56 निकाल दे तो फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम आएगा 0.44 और कोर्स एग्रीगेट का हुआ 0.56। अब कैलकुलेशन करते हैं मिक्स प्रोपोर्शन का। देखते हैं स्टेप नंबर 6 में वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट था 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब है हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम था। अब सीमेंट कंटेंट को फाइंड करना है, तो कि हमने आगे थियरी में देखा कि मास ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1/1000, ये है हमारा 1 मीटर क्यूब के लिए। सो मास ऑफ सीमेंट कितना था 370 और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3.15 इंटू 1/1000। सो 1 मीटर क्यूब में 0.117 मीटर क्यूब है वो सीमेंट कंटेंट रहेगा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर देखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ वाटर कितना था 148 और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है वाटर की 1 इंटू 1/1000, तो ये आएगा 0.148 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब में। देन वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर सुपर प्लास्टिसाइजर एट 2% बाय मास ऑफ सीमेंटेनियस मटेरियल, सीमेंटेनियस मटेरियल का 2% है हम केमिकल एडमिक्सचर वहाँ पे डालते हैं, तो यहाँ पे हमको मास मिलेगा एक्चुअल मास 2 इंटू 2/100 इंटू 370, 2% लेना है सीमेंटेनियस, सीमेंट हमारी थी 370, सो वो आएगा 7.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.145। सो अब उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसका मास आया 7.4, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.145 इंटू 1/1000, तो वो आएगा 0.0065 मीटर क्यूब। तो हमारा 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में 0.0065 मीटर क्यूब है वो
कौन रहेगा वहाँ पे, वो रहेगा एडमिक्सचर। सो एब्सोल्यूट वॉल्यूम फाइंड करते हैं ऑल द मटेरियल एक्सेप्ट टोटल एग्रीगेट। एग्रीगेट के अलावा जो जो भी मटेरियल है उसका वॉल्यूम है उसको कैलकुलेट करते हैं। 0.117 is the volume of cement, 0.148 is the volume of water and 0.0065 is the volume of admixture. So वो टोटल हुआ 0.271 मीटर क्यूब। सो 0.271 मीटर क्यूब है वो ये तीनों मटेरियल का हुआ। तो अब एब्सोल्यूट वॉल्यूम टोटल एग्रीगेट का एब्सोल्यूट वॉल्यूम हमको मिलेगा पूरा का पूरा है 1 मीटर क्यूब। यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में से हम ये तीनों का जो वॉल्यूम है वो बात कर दे 0.271, तो हमको वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट है वो मिल जाएगा यहाँ पे 0.729 मीटर क्यूब जितना हमारा एग्रीगेट होगा। उसमें कोर्स भी आ जाएगा और फाइन भी आ जाएगा। देन अब मास निकालते हैं। एडमिक्सचर, सीमेंट और वाटर ये सब का तो हमने वेट है वो निकाल लिया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। सो वॉल्यूम टोटल कितना आया 0.729 और कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना था हमने आगे फाइंड किया 0.56। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 2.4 इंटू 1000। सो कोर्स एग्रीगेट कितना रहेगा 1118 किलोग्राम। उस ऐसे ही हमको फाइन एग्रीगेट का फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम कितना है एग्रीगेट का 0.729, उसका वॉल्यूम है फाइन एग्रीगेट का 0.44, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.74 है और इंटू 1000, तो फाइन एग्रीगेट का कंटेन आएगा 879 किलोग्राम। सो स्टेप 7 है मिक्स प्रोपोर्शन फॉर ट्रायल नंबर 1। ये जो हमने फर्स्ट ट्रायल कर रहे हैं उसका मिक्स प्रोपोर्शन है। सीमेंट कंटेन आएगा 370 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर आएगा 148 लीटर, फाइन एग्रीगेट आएगा 879 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कोर्स एग्रीगेट आएगा 1118 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और केमिकल एडमिक्सचर आएगा 7.4। यानी कि टोटल कितनी हुई डेंसिटी पर मीटर क्यूब 2522, वो हमारी वेट डेंसिटी हुई। सो वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे कितना था 0.40। अब क्या होता है साइड करेक्शन के लिए जो वाटर एब्सॉर्ब करते हैं एंड सरफेस मॉइस्चर एग्रीगेट में रहता है उसका साइड करेक्शन करना रहता है। सो एब्सॉर्प्शन फाइन एग्रीगेट हमको एग्जांपल में दिया गया था कि 1% फाइन एग्रीगेट है वो वाटर एब्सॉर्ब करते हैं। तो एग्रीगेट का टोटल वेट कितना था 879, तो उसका 1% उसमें से हम निकालें तो कितना होगा 879, यानी कि 879 जितना उसमें वाटर है वो एब्सॉर्ब रहता है। और कोर्स एग्रीगेट कितना था 0.5%, तो उसमें उसका जो टोटल वेट था 1118, उसमें से हम 0.5% निकाल दे तो उसमें 5.59 जितना वाटर उसमें था। दोनों का टोटल किया जाए तो आएगा 14.38 लीटर। तो ये जो एग्रीगेट है उसमें 14.38 लीटर जितना वाटर है उसमें एब्सॉर्ब है। तो हमको टोटल वाटर है वो कंक्रीट बनाने के लिए ऐड करना है, उसमें से हमको ये प्लस करना रहता है। सो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर टू बी यूज़ कितना होगा 162 लीटर 0.38, क्योंकि 148 तो हमारा आया कंटेंट और 14.38 है वो एग्रीगेट में पहले से ही था। सो एक्चुअल मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट का कितना रहेगा, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स एग्रीगेट है जो हमको टोटल वेट उसका मिला 1118, उसमें से जो वाटर है अब उसको निकाल देना है माइनस 5.59, तो हमारा एक्चुअल मास आएगा 1112 इंटू 4.1 किलोग्राम कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के लिए आएगा 870.21 किलोग्राम। सो ये मिक्स प्रोपोर्शन है बाय मास। सबसे पहले हमको ये टेबल बनाने के लिए यहाँ पे वाटर, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट ये लिख देना है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमको चलना है कि हमारा सीमेंट कंटेंट कितना आया था, तो कि 370 किलोग्राम आया था, उसको हम बोलते हैं 1। हमको प्रपोर्शन बनाना है इसलिए ये हमारा प्रपोर्शन आया है, न्यू प्रपोर्शन। सो हमारा सीमेंट कंटेंट को हम बोलते हैं 1, तो 1 सीमेंट कंटेंट के लिए 370 किलोग्राम सीमेंट यूज़ हुआ, बराबर। ओके, तो अब क्या करना है, ये
सभी जो प्रोपोर्शन है फाइन एग्रीगेट का लाइक 870.21 है, उसको डिवाइड करना है 370 से, तो वो मिल जाएगा 2.35। और ये कोर्स एग्रीगेट का है, उसको भी 370 से डिवाइड करना है तो 3 मिल जाएगा। 162.38 लीटर वाटर है, उसको भी 370 से डिवाइड करना है तो वो मिलेगा 0.438। तो ये हमारा न्यू प्रोपोर्शन मिल गया। जैसे M20 और M25 में प्रोपोर्शन दिए गए रहते हैं, M20 का 1.5 M3 है, ऐसे ये न्यू प्रोपोर्शन हमने न्यू डिज़ाइन बनाई, उसका ये प्रोपोर्शन है। अब देखते हैं क्वांटिटीज़ फॉर 1 बैग ऑफ सीमेंट। 1 बैग और सीमेंट की क्वांटिटी से कंपैरिजन करना है तो कितना होगा। 50 किलोग्राम, ये 50 किलोग्राम है। सो यानी कि 370 हमारा जो 370 सपोज के फाइन एग्रीगेट का फाइंड आउट करना है एज कम्पेयर टू 50 किलोग्राम। सो 370 के सामने कितना था फाइन एग्रीगेट का, वो रखना है हमको। कितना था हम देखते हैं, 1 मिनट। 870.21, तो 50 के अगेंस्ट में कितना होगा, तो वो होगा 117.5। ऐसे ही देखना है कि 370 वो जब वाटर था तो कोर्स एग्रीगेट कितना था, 1118। सो 50 पे कितना होगा, ये हमको त्रिराशि लगानी है। और वैसे ही वाटर का करना है हमको। सो ये तीनों रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। वाटर रहेगा 21.9 लीटर एज कम्पेयर टू 50 किलोग्राम सीमेंट, 1 बैग ऑफ सीमेंट। उसमें फाइन एग्रीगेट रहेगा 117.5 किलोग्राम और कोर्स एग्रीगेट रहेगा 150 किलोग्राम। सो ये था हमारा मिक्स डिजाइन का एग्जाम्पल। So now these are the list of references, concrete technology by MS सेठी, ML गंभीर एंड अतुल प्रकाशन। ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर एग्जामिनेशन। And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.